Good afternoon, everyone. Today is 30th January, and due to some technical issues, we could not upload this video, but we take the full responsibility of giving continuous support, continuous mentorship to all the aspirant. So we are reshooting and re-uploading the video. Today is 30th January, and इसका वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सर्वे के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। जो पहले 3 आर्टिकल्स है वो इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली लिए गए। वे प्रेडिक्ट्स fit India during within troubled world. जो सेकंड आर्टिकल है इट इज रिगार्डिंग opposition to the unconditional cash transfers. Different governments started giving unconditional cash. Third is regarding states' growing reliance state developmental loans. And this over reliance on state developmental loans has actually weakened the fiscal stability. Fourth article is regarding pharma regulations that some pharma regulations have been renewed or relaxed. The article raises concerns against removal of such regulations because these should not come at the cost of the quality of the medicine. The last article is regarding Gaza deal progress. Trump mentioned that Hamas has set to disarm itself. Out of these five, first four are very important from our exam perspective. Fifth is also important, but just being aware about the fifth article would be sufficient. Here are a few announcements before we get into the details of it. The GS Foundation batch will be launched very soon from month February. This is very much suited for those who are working professionals because it is available in both online as well as offline format. Based on your preference, you can choose any of these four timings. This course is suitable for those who absolutely raw knowledge or absolutely no knowledge about HPSC and are willing to learn with us, grow with us, and directly get converted into the final list. For that, proper hand holding will be done for your prelims, for your mains, as well as interview. For further details, you may contact on the number mentioned here. Next announcement is regarding the crash course batch. This crash course batch is for those who are appearing in APSC 2026, means within next 3-4 months. जब नया नोटिफिकेशन आएगा इस साल जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए the design of the course is such that you will be able to revise whole syllabus within a span of 2 to 3 months. ये जो प्लान है इट इज फॉर क्विक एंड सिस्टमेटिक रिवीजन. इस प्लान का इंटीग्रल पार्ट है 10 स्मार्ट बुक्स जो प्रीलिम्स के लिए होंगे, एनालाइज्ड मेंटरशिप, 15,000 प्लस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज as well as डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस. इसमें मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा. इस मेंटरशिप में ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी एक्सेस दिया जाएगा. ये बहुत जल्दी लॉन्च होगा जिसके डिटेल्स के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. 60022206217. Regarding this 15,000 MCQ test series, the next slide will give you further details on it. ये जो 15,000 MCQ test series है ये divided है दो sections में. One is free part and the other one is paid part. The free section will have 3,000 plus MCQs on YouTube. It will be 25 MCQs every day. This discussion will involve MCQ elimination techniques, explanation of all the MCQs. However, the paid part is of 12,000 MCQs जो 120 टेस्ट के फॉर्मेट में है. ये 120 टेस्ट जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. इजी सेक्शनल,
moderate sectional and difficult 30 sectional. इसके अलावा you will have 10 full length test, 10 CSAT test, 10 previous years test simulation. इसका जो प्राइस था वो 12,000 रुपीज़ है, लेकिन अभी डिस्काउंट प्राइस में वो 7,999 में अवेलेबल है। For further discounts, you can contact on the number mentioned on your screen. ये CNA डिस्कशन का जो PDF है, you can access by downloading the official CCP app in this QR code. Let's get started. First article is from Economic Survey of India. This Economic Survey of India has predicted that despite the turmoil world over, India will continue to outshine. India will continue to grow. आज यूरोपियन यूनियन ट्रबल टाइम से गुजर रहा है, आज ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी ट्रबल टाइम से गुजर रही है because of the trade barriers, because of the trade deficit, because of the weaponization of tariff by certain major countries. इकोनॉमिक सेंस में पूरी दुनिया ट्रबल्ड है। ऐसे सिचुएशन में स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ के वर्ल्ड ओवर सिनारियो में इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज शोइंग पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक है। जो फाइनेंशियल ईयर टू 2027 है के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है इज अराउंड 6.8% टू 7.2%। दैट मीन्स रफली 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। जो मीडियम टर्म आउटलुक है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इट हैज बीन रेज्ड टू 7%। ये जो सर्वे है इट हैज आल्सो फ्लैग्ड दैट देयर विल बी सम कैपिटल फ्लो डिस्ट्रप्शन एंड इट विल कॉन्सिक्वेंटली लीड टू द वोलेटिलिटी ऑफ द रूपी बिकॉज जो कॉमन रिस्क है वो सारे ग्लोबल में इट इज कॉमन अक्रॉस द ग्लोबल सिनारियोज। टी के पर्सपेक्टिव से ये याद रखिएगा कि जो सर्वे जो होता है इट इज पब्लिश्ड क्यूरेटेड प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ कोर इश्यूज है, कोर कंसर्न्स है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल फ्रेजिलिटी मीनिंग जो करंट मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो बहुत डिसऑर्डरली सिचुएशन में है because of its unresolved conflicts disrupting the trade, capital flows and supply chain। मतलब अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे तो रशिया, सॉरी, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, लेबनान, गाजा, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज आर अंडरगोइंग इश्यूज। एट द सेम टाइम ग्रीनलैंड में यूएस का जो इंटरेस्ट है दैट हैज रेज द कंसर्न विद इन यूरोपियन यूनियन एज वेल एज नाटो। रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, इसमें ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस इंस्टेबिलिटी लेकर आया स्पेशली मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो कि डिसऑर्डरली हुआ है, इट हैज इंक्रीज्ड द ग्लोबल फ्रेजिलिटी। इंडिया is currently facing the risk of capital flow volatility because of the external dependency. Also, there is mounting pressure on the Indian rupee. Third, इंडिया हैज इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस पैराडॉक्स मीनिंग जैसे ही पर कैपिटा इनकम इंडिया में बढ़ रहा है, जैसे राइजिंग इनकम्स है, दीज राइजिंग इनकम्स inevitably raising the import bills. These are testing external balance even with indigenization of efforts. The final issue or final concern is investor confidence imperative क्योंकि जो ग्रोथ है 7% का, 7.5% का, 5% का, इट लार्जली रिलाइज attracting stable foreign capital and boosting India's export competitiveness। लेकिन अगर रिलायबिलिटी रिलायंस हमारा अगर कैपिटल इनफ्लो के ऊपर है एंड इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकेज विद ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस के ऊपर जरूर होगा।
की टेक अवे इसमें यह है, इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन जो एक्सटर्नल शॉक्स आने वाले हैं, जो अभी दिखाई दे रहे, दीज आर मेकिंग मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड एक्सपोर्ट लेड स्टेबिलिटी वेरी क्रूशियल। ये एमसीक्यू है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो। ये फर्स्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया था तभी भी ये अपलोड नहीं हो पाया था, दिक्कत हुआ था, इसलिए फिर से ये इसको कर रहे। क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क for India across global scenario? A. Sharp rise in fiscal deficit due to subsidies. B. Disruption of capital flows impacting the rupee. C. Collapse of domestic consumption demand. Or D. Structural unemployment due to automation. Right answer is B. Disruption of capital flows in the rupee. You may pause the video and read the explanation in details. Next article is also from the Economic Survey of India. It has opposed the unconditional cash transfer. ये अनकंडीशनल कैश या यूसीटी होता क्या है? जैसे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, मीनिंग बिलवेड सिस्टर स्कीम जो है, उसके अंडर हर 3 महीने में हर फीमेल को 1500 रुपये दिए जाते हैं। हर फीमेल मतलब कुछ कंडीशन अप्लाई है, लेकिन इन जनरल 1500 रुपये दिए जाते हैं। ये जो पैसे दिए जाते हैं, ये विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी वर्क कॉन्ट्रीब्यूशन, विदाउट एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी दिए जाता है। तो ये अनकंडीशनल ट्रांसफर्स को इकोनॉमिक सर्वे ऑपोज कर रहा है। जो इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली मेंशन किया है, इट हैज कैटेगोरिकली डिफरेंशिएटेड बिटवीन दीज टू थिंग्स। द प्रोडक्टिव पब्लिक स्पेंडिंग, जो कि हेल्थ केयर, रोड कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट इसमें जाता है, फ्रॉम कंजम्पशन ओरिएंटेड ट्रांसफर, जैसे कि ये स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसके अगेंस्ट आपको कुछ करना नहीं है। क्यों इकोनॉमिक सर्वे ये कर रहा है, ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड ट्रांसफर, इनकी जगह पर जो प्रोडक्टिव पब्लिक स्पेंडिंग है, उनको प्रायोरिटी दी जाए। ये इट एम्फसाइजेस इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, न्यूट्रिशन एंड स्किलिंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कैश हैंडआउट्स। जो कोर कंसर्न्स है हमारे लिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, वो है कि ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर होता है, ये फिजिकल सेंस में कितने सस्टेनेबल है, बिकॉज दीज क्रिएट परमानेंट एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर ये बिलवेड सिस्टर स्कीम जो है महाराष्ट्र की, अगर उसमें उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी है कि ये आपको फंड्स 1 साल तक मिलेंगे, 2 साल तक मिलेंगे, 5 साल तक मिलेंगे, कोई एंड डेट नहीं दिया है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। तो ये एक फिस्कल कमिटमेंट है, एंड दैट कमिटमेंट इज़ विदाउट एश्योर्ड रेवेन्यू बैकिंग। कोई फिक्स्ड रेवेन्यू सोर्स के बैकिंग के बिना ये किया जा रहा है। सेकंड इज़ वीक डेवलपमेंटल आउटकम्स। जो कैश ट्रांसफर जो होता है, वो अकेले में कोई भी ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड नहीं कर सकता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बिल्ड नहीं कर सकता है। ये सिर्फ कंजम्पशन को प्रमोट करता है। देयर इज एन इरोजन इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मीनिंग व्हाट, कि ये जो स्कीम्स है, बिलवेड सिस्टर स्कीम, जब महाराष्ट्र ने एस्टेब्लिश की, तो दिल्ली ने अपने इलेक्शन में उसका बेटर वर्जन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बेसिकली महाराष्ट्र अगर 1500 रुपये दे रहा है, तो दिल्ली सोच रहा है कि वो 2000 रुपये देगा। उड़ीसा कह रहा है कि हम 2500 देंगे, तमिलनाडु कह रहा है कि हम 3000 देंगे। तो यहाँ पे ये पॉपुलिस्ट मेजर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो गया विद इन द यूनिट्स ऑफ द फेडरल। कंपिटिटिव पॉपुलिज्म जो है, दैट इज गोइंग टू डिस्टॉर्ट द फिजिकल डिसिप्लिन विद इन द स्टेट्स। नेक्स्ट इशू इज टारगेटिंग इनएफिशिएंसीज, बिकॉज ये
अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, तो विदाउट एनी क्वालिटेटिव डिमार्केशन सबको ट्रांसफर। अगर आप यूनिवर्सल ट्रांसफर दे रहे हैं या पुअरली टारगेटेड ट्रांसफर, सब जिनको जरूरत नहीं है उनको भी अगर पैसे जा रहा है, तो दिस इज एक्चुअली डायल्यूटिंग द वेलफेयर इफेक्टिवनेस ऑफ दैट स्कीम। This has also led to the political economy distortion. जो welfare policies है, these are now at the risk of being driven by the electoral incentives rather than the long-term outcomes. मतलब जो emphasis, जो decision making factor है, वो ये है कि इस स्कीम से इलेक्शन में ज्यादा फायदा होगा। ये नहीं सोचा जा रहा कि कौन से स्कीम में लॉन्ग टर्म सोसाइटी को बेनिफिट होंगे, देश को बेनिफिट होंगे, स्टेट को बेनिफिट होंगे। की टेक अवे, अगर एक स्टेटमेंट में कंक्लूड करना हो तो वो ये होगा, जो सस्टेनेबल वेलफेयर होता है फिलोसॉफी, इट रिक्वायर्स कैपेबिलिटी बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, नॉट फिस्कली रिस्की अनकंडीशनल कैश स्टार्ट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। Why does Economic Survey 2025 opposes unconditional cash transfer? A. They violate constitutional principles of equality. And B. They reduce private consumption demand. C. They strain public finances without creating durable economic capacity. And D. They cannot be implemented using digital platform. The answer is C, because they strain public finances without creating any durable economic capacity. Third article, states growing reliance on developmental loans, leading to weakening of fiscal stability. पहले तो ये समझ लेते हैं एसडीएल होता क्या है। एसडीएल का फुल फॉर्म है स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स। ये एक बॉन्ड इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इस बॉन्ड को हैंडल करता है आरबीआई। हुआ ये है कि जो गवर्नमेंट को फाइनेंसेस की जरूरत होती है, स्टेट गवर्नमेंट को, वो अलग अलग तरीके से वो कलेक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो एसडीएल का रूट अपना रहे। एसडीएल में वो इशू बॉन्ड इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको आरबीआई मार्केट में बेचता है। जो उस बॉन्ड को खरीदते हैं वो पैसे स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उसके बेसिस पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक अश्योर्ड इंटरेस्ट रेट देता है, तो एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होती है लोगों के लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट का हेवी रिलायंस दीज एसडीएल इज लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमैटिक। अब इसको समझने के लिए एक कंटेक्स्ट भी समझना होगा, क्योंकि सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन जो है, जो सेंट्रल से जो टैक्स शेयर होता है, वो भी वीक हुआ है। देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फैक्ट समझते हैं पहले। ऑल्दो 15 फाइनेंस कमीशन ने स्टेट का शेयर 41% फिक्स किया था विद इन द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, तो 41% स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन जो इफेक्टिव फ्लो ऑफ टैक्सेशन है वो कम हुआ है। व्हाई? बिकॉज नॉन डिविजिबल सेस एंड सरचार्ज जो है वो काफी बड़ा चंक फॉर्म करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो सरचार्ज एंड सेस क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स है। सेस एंड सरचार्ज कोई स्पेसिफिक के ऊपर लगाया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस से। मीनिंग, लेट्स से कोई चीज 100 रुपए की है, उसके ऊपर 20%, वो चीज हो जाती है तो 20 रुपए की, ठीक है। लेट्स से कि अगर वो पोल्यूशन करने वाली चीज है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लीनलीनेस सेस लगाया है 5%।
लेट्स से, या फिर उसके ऊपर भी, के ऊपर अगर उन्होंने 10% लगाया, तो ये 20 रुपीज़ का 2 रुपये, मतलब ये फाइनली 2 रुपीज़ का सेस टोटल हो जाएगा 122 रुपये। तो इस 122 रुपये में से जो 20 रुपये टैक्स के हैं, वो सेंटर और स्टेट के इसमें शेयर होते हैं। और जो सेज एंड सरचार्ज है, वो शेयर नहीं होता है। तो इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ डिवोल्यूशन बिकॉज ऑफ this high amount of surcharge and base, the devolution of tax between center and state वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहा। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स है, दे नाउ फॉर्म वेरी सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन मेजर स्टेट्स सच तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। इसमें कोर इश्यूज जो है वो समझ लेते हैं। जो फिजिकल फेडरलिज्म, द फर्स्ट इशू इज फिजिकल फेडरलिज्म स्ट्रेस, क्योंकि जो राइजिंग यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज है, इट हैज रिड्यूस स्टेट्स इफेक्टिव शेयर इन द डिविजिबल टैक्सेस। क्योंकि जो स्पेशली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जो इनका शेयर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना था, वो वैसे भी वो कम हो गया है। द सेम टाइम जो डिविजिबल टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स थी, वो इन इटसेल्फ क्वांटिटी वाइज कम हो गई, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेस एंड सरचार्ज से कमा रहा है। सेकंड इज जो वेलफेयर फाइनेंसिंग है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोरिंग कर रहा है फाइनेंसिंग वेलफेयर, वो सारा का सारा डेट लेड है, मतलब कर्जा लेकर किया जा रहा है। करंटली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो फंड किया जा रहा है बोरोइंग से इंस्टेड ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल। और इंपॉर्टेंट क्राइसिस क्रिटिकल इशू है पोस्ट पैंडेमिक लेगेसी। जब कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक बोरिंग पैटर्न इवॉल्व हुए थे। वो बोरिंग पैटर्न कोविड के बाद इमिडिएटली जब नेसेसिटी थी इसलिए रखे गए थे, बट आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ कोविड दे शुड हैव बीन इवेंचुअली रिमूव्ड। लेकिन वो जो बोरिंग पैटर्न्स है, हेवी बोरिंग्स टू फाइनेंस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, they have now become structural other than वो परमानेंट हिस्से जैसा बनने लग गया है। Fourth concern is regarding GST design impact. There is a weak link between states' tax and revenue reward that undermines the fiscal incentives mechanism. Fifth important element is of crowding out risk. जब कोई भी स्टेट स्टेट डेवलपमेंटल लोन के थ्रू प्राइवेट मार्केट से प्राइवेट पैसा उठाता है, तो वही कैपिटल जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनके लिए कम हो जाता है। तो इट इज काइंड ऑफ reducing the availability of the capital of the private investment. So it is referred as crowding out risk. Concluding statement would be ये जो fiscal dependence है on borrowing for welfare, it is actually threatening the fiscal autonomy of the state. This excessive dependence on borrowing for welfare is threatening state's fiscal autonomy and long-term growth capacity. Please pause the video and attempt this MCQ. Which of the following best explains the increasing reliance states state developmental loans? A. Decline in state level tax administration efficiency? No. Reduction in GST rates across the states? No. Erosion of effective tax devolution due to cess and surcharges? Correct. D. Constitutional cap on state revenues? No. The answer is C. Erosion of effective tax devolution due to cesses and surcharge. You may pause the video and read the explanation. Fourth article is quick pill. ये कॉशन करने वाला आर्टिकल है। इट हैज
caution against removal of some of the pharma regulations because they might come at the cost of ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ाने के लिए, उनका काम ईज़ी करने के लिए, जो गवर्नमेंट ने सर्टेन रेगुलेशंस को रिलैक्स किया, कुछ रिमूवल कर दिया है, दैट मे इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द फार्मा सेक्टर। Found here that government has eased licensing norms and the timelines for pharmaceutical research and manufacturing in order to promote innovation and ease of doing business. Certain facts that we should focus on. कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है, certain categories of drugs, वहाँ licensing timelines जो है, they have been reduced significantly. Have been shifted to the prior intimation model. Intimation देना पड़ता है. Despite deregulation, जो good manufacturing practices है, they are remaining mandatory. मतलब अब रेगुलेशन कम हुआ जरूर होगा, लेकिन जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, वो वैसे ही कंटिन्यू होगा। जो कोर कंसर्न्स एंड कोर इश्यूज है, पहला जो है वो है डाइल्यूशन का रिस्क, स्पेशली रेगुलेटरी डाइल्यूशन। Approvals, the licensing might weaken the oversight of drug safety and quality standards. क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग सेफ्टी, सेफ ड्रग, प्योर हाई क्वालिटी ड्रग स्टैंडर्ड मेंटेन करना इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, क्योंकि लोगों के हेल्थ के साथ वो खेलता है। उसमें अगर फास्टर अप्रूवल्स दिए फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग, वो सेफ्टी को रिस्क में डाल देगा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट dimension or area of concern is, are we going to prioritize quality product or are we going to focus on speed? इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ होगा। एक को अगर आप क्वालिटी के पीछे भागोगे, अप्रूवल स्पीड कम होगा, और अप्रूवल स्पीड के पीछे भागोगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। उन दोनों में से एक डिसाइड करना होगा। इसको कहा जाता है एक्सेलरेटिंग लैब टू मार्केट टाइमलाइन। थर्ड इज रेगुलेटरी फेल्यूर्स। रिसेंट ड्रग क्वालिटी लैप्सेस जो हुआ है, these have underlined the systematic weakness in pharmaceutical oversight। ने अगर न्यूज़ पढ़े होंगे पिछले कुछ दिनों में, even in foreign countries, some of the Indian medicines have health concern. Is- They have raised serious concerns regarding the quality of the medicines produced in India। अगर उसमें भी हम अगर आगे जाकर रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को रिलैक्स कर देते हैं, तो और ज्यादा नाम खराब होने के चांसेस है। फोर्थ इज, there are challenges regarding manufacturing compliances, paperless intimation regimes। ये जो phenomena है, they require actually very strong post approval monitoring in order to be effective। Is putting credibility at stake। इंडिया की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इट इज नाउ एट स्टेक, बिकॉज इंडिया का जो एम्बिशन है टू बिकम अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, it actually depends upon the trust factor, the trust in the quality of the product, not speed at which it is being produced। So concluding argument would be that regulatory जो efficiency है in pharmaceutical sector, it must be matched the uncompromising quality control to protect the public health। Please pause the video and try and attempt this MCQ. What is the primary concern associated with easing pharmaceutical licensing regulation? A. Reduced foreign investment in pharma sector. B. Slower drug innovation cycles. C. Potential decline in drug quality due to weaker oversight. Or D. Increased drug prices for consumers. The correct answer would be C. Potential decline in drug quality due to weaker oversight।
Here is the explanation given. अगर कोर कंसर्न यही है कि compromised quality control without strong post-approval monitoring would be the result. जल्दी जल्दी अप्रूवल देने के चक्कर में हम लैब मार्केट के टाइमलाइन को कम करने के चक्कर में स्पीड को प्रायोरिटी दोगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। रिगार्डिंग द गाजा डील प्रोग्रेस, इसमें ट्रम्प हैज mentioned in the cabinet meeting that Hamas has actually agreed to disarm itself. बट ये जो है ये न्यूज़ को थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न के साथ ही देखना होगा, इनके साथ देखना होगा क्योंकि Hamas has history of not biding to such commitments like disarmament. वैसे भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बस ऊपर-ऊपर से समझेंगे पासिंग रेफरेंस के लिए। अगर प्रीलिम्स में गाज़ा डील के ऊपर क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत इससे गेस वर्क कर सकता है। कुछ फैक्ट्स, डिसआर्मामेंट जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ द सीजफायर प्लान विच वाज अग्रीड अर्लियर। डिसआर्मामेंट मतलब हथियार डाल देना। द हमास हैज इंडिकेटेड विलिंगनेस टू हैंड ओवर वेपन्स ओनली टू द पैलेस्टीनियन गवर्निंग अथॉरिटी, नॉट टू द एक्सटर्नल एक्टर्स। वो इशू कोर कंसर्न इसमें ही है कि देयर इज अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस डिसआर्मामेंट क्लेम्स। Second important issue is how sustainable are these ceasefires? Is रीजनल इंस्टेबिलिटी रिस्क, क्योंकि अगर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को अनरिजॉल्व रखा गया तो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू अफेक्ट द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई मार्केट सिक्योरिटी। फोर्थ इज द लिमिटेशंस ऑन द एक्सटर्नल मीडिएशन। जो यूनाइटेड स्टेट लेड अश्योरेंस है एनी पीस ट्रीटी, दिस इज गोइंग टू फेस कंस्ट्रेंट विदाउट इंक्लूसिव रीजनल गारंटीज। अगर रीजनल प्लेयर्स ने कोई गारंटी नहीं लिया, इट इज गोइंग टू फेस क्रेडिबिलिटी इश्यूज। द लास्ट वन इज रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखते हो तो इसराइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एंड अगर इसराइल की सिक्योरिटी को देखते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन रिकवरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कंक्लूडिंग टेक अवे वुड बी विदाउट ए क्रेडिबल एनफोर्समेंट disarmament assurances still risk remaining tactical pauses rather than real pathways to the peace. Please answer this MCQ. In the context of Gaza ceasefire, is Hamas disarmament considered critical? A. It ensures immediate lifting of all sanctions on Gaza. No, it does not ensure. B. It marks the formal end of the Israel-Palestine conflict. No. It enables transition from temporary ceasefire to a durable peace framework. It guarantees international recognition of Hamas as a political entity. No. The correct answer is C. It actually enables transition from temporary ceasefire to a durable peace framework. You can read the detailed explanation here. These are the CSAP smart books and are now available in Alchemist Script. There are total 17 book set, 17 books in this set. You can access these smart books one-stop solution contacting on the number mentioned on your screen. Thank you very much. Please remember, this is our ongoing effort to re-upload the videos of the CNA discussion of the month of January. Today was 30th of January. Thank you so much for joining in. Have a good day.